اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن اسمبلی مہاراشٹرا محترم جناب وارث پٹھان صاحب، غلام صابر صاحب، اسد عبداللہ صاحب، شمیم ترک صاحب، محترم عمران بابی صاحب، ریگ الاسلام صاحب، محمد مومن صاحب، شمال پاشا صاحب، جناب محمد شوان صاحب، جناب محمد ملک سلیم صاحب، جناب بٹو صاحب، محمد شہزاد صاحب، جناب صدام صاحب، جناب نوید الرحمان، جناب رفعت سنبھلی صاحب، سید اسلم صاحب، جناب سالم صاحب، میری عزت اور ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس میٹنگ میں شرکت کی اور آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 14 فروری کے دن نہ صرف سنبھل بلکہ پورے اتر پردیش میں آپ اپنی دعاؤں سے اور اپنی محبت سے ایک نئے انقلاب کو برپا کریں گے اور ایک نئی تاریخ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اپنے ووٹ سے مجلس کے حق میں رقم کریں گے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 30 سال سے یہاں سے اس ویدھان سبھا سے، اس اسمبلی حلقے سے آپ نے سماجوادی پارٹی کے امیدوار جناب نواب صاحب کو آپ کامیاب کرتے رہے، مگر میں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے 30 سال کامیاب کیا اپنے ووٹوں سے، دھوپ ہو یا سردی ہو، آپ نے لائن میں گھنٹوں کھڑے ہو کر ان کو ووٹ دیا، ان پر ایک بہت بڑا احسان کیا، ان کو ودھائک بنایا، ایک بار دو بار نہیں بلکہ کئی بار. اور آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو ووٹ آپ کے لیے ایک قیمتی چیز ہے، جب آپ کسی امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی ضمیر کی آواز پر اس کو ووٹ دیتے ہیں، ایک بھروسے کی امید پر ووٹ دیتے ہیں کہ کل یہ جیت جائے گا تو میرے بھروسے کو شرمندہ نہیں کرے گا. مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سنبھل کا حال دیکھ لیجئے. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، ہر جگہ گندگی کے انبار ہیں، یہاں پر کوئی کالج کا مؤثر انتظام نہیں ہے، بچیوں کے لیے ڈگری کالج کا کوئی انتظام نہیں ہے. سنبھل کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جب اکھلیش یادو مکھیہ منتری تھے، سپا کی حکومت تھی، اس کو سنبھل سے دور 24 کلومیٹر دور لے جا کر رکھ دیا گیا. آپ خود بتائیے کہ کیا وہ شخص اب کی بار آپ کے ووٹ کا مستحق ہے یا نہیں؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہاں یقیناً آپ کے نہیں کے نعرے بالکل اچھی ایک علامت ہے، مگر یاد رکھیے 14 تاریخ کے دن بھی جا کر آپ کو وہاں پر اس نعرے کو یاد رکھ کر جناب مشیر ترین صاحب کے حق میں جو مجلس کے امیدوار ہیں آپ کو ان کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. تو پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈالیے، سنبھل ویدھان سبھا کی تاریخ کو بدلیے، سنبھل ویدھان سبھا کی ترقی کے لیے، سنبھل ویدھان سبھا کے اہمیت کے لیے آپ کو اب کی بار مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں ووٹ دینا ہے. یاد رکھیے میری اس بات کو کہ سماجوادی اور بسپا کے پاس آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی اہمیت اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریں گے. آپ نے ان کو ووٹ دیا، سماجوادی پارٹی کو آپ نے کئی مرتبہ ووٹ دیا اور سماجوادی پارٹی کے پاس آپ کی اہمیت صرف یہی ہے، نواب صاحب کے پاس آپ کی اہمیت یہی ہے کہ آپ صرف دری بچھاؤ اور اکھلیش کے نام پر نعرے لگاؤ کہ بھیا تجھ پر جوانی قربان.
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ये मिजाज देना चाहती है कि हम ना किसी की दरी बिछाएंगे, ना किसी के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करेंगे, बल्कि मजलिस आपसे ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, संभल की विकास के लिए, संभल की जनता की अहमियत को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में मजलूम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए तुम अब अपनी जवानी नहीं कुर्बान करोगे, ओवैसी अपनी जान को कुर्बान करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सिर्फ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, आपकी साथ की अपील करता हूं कि ये लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है, ये जो लड़ाई में बहैसियत आपका सिपाही और आपका खादिम बनकर ओवैसी लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है ताकि आने वाली नस्ल उसी नाइंसाफी का शिकार ना हो जाए जो हमारे समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब साहब ने संभल के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया, संभल के नौजवान बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर दिया, हमारी बेटियों को कॉलेजों से महरूम कर दिया, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, संभल में अगर किसी का विकास हुआ, संभल में अगर कोई आगे बढ़ा, तो सिवाय नवाब साहब की कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री और सिरेंज बनाने के कोई आगे नहीं बढ़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे ये सच्चाई के अल्फाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी कुदरत के जरिए नवाब साहब के घर में भी पहुंचा रहा होगा। हमको बताया गया कि नवाब साहब घर में बैठकर हमारे भड़काऊ भाषण को सुन रहे हैं। सुनो मेरी आवाज को, सुनो मेरी इस हकीकत को मैं बयान कर रहा हूं, शायद आपका दिल भी पलट जाए, क्योंकि जब हमारी आवाज अल्लाह के करम और फजल से जो सच्चाई पर मुबनी होती है, हकीकत को हम बयान करते हैं, हक को बयान करते हैं, हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, बातिल को हराने का काम करते हैं, तो जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते उनके दिल भी कांपना शुरू कर देते कि ये सच बोलने वाला आया है, अब भड़काऊ भाषण का उसको नाम देने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में आकर इनके हर नेता की तकरीर आप सुन लो या निजी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको याद होगा वो आपसे बोलेंगे कौम 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 कौम, कौम के नाम पे वोट दो, कौम के नाम पे ये कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब के बारे में। नौजवानों याद रखो, बुजुर्गानी मिल्लत मेरी इस बात को याद रखिए, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बनकर तुमसे कह रहा हूं, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जब वक्त नमाज, यानी ये वक्त जो है सजदे में गिरने का नहीं है, ये वक्त कयाम में ठहरने का है। जब वक्त कयाम आया तो नादा सजदे में गिर गए, ये वक्त ठहरने का याद रखो। अगर आप ये समझेंगे कि अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, क्या करेंगे, मजबूर है आप, ना 35 साल पहले भी मजबूर थे, ना आज मजबूर है, बल्कि आज तो है ही नहीं, आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी को देखो और ओवैसी के नाम पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाइए। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, संभल का नेता कौन है बताओ, क्या नवाब है या ओवैसी है, बताओ आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। 30 साल से
30 साल से कामयाब होते हैं, मगर क्या किया संभल के लिए काम नहीं दिखा पाते। बल्कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुझे बतलाया गया कि कटरा मूसा खान में नवाब साहब ने जिंदों को नहीं छोड़ा तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा नवाब साहब। ये अजीब आदमी है कि कटरा मूसा खान के कब्रिस्तान को नवाब साहब ने खत्म करके वहां पर खेल का मैदान बना दिया। अब आप सोचिए जिंदों की क्या अहमियत जब मुर्दों की नहीं है तो। जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं, जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं कि जब सूर लगाया जाएगा, जब हशर का मैदान खड़ा किया जाएगा, नवाब याद रखो वो खबर से निकलने वाला कहेगा कि अल्लाह इसने जिंदों को भी नहीं बचा तो मैं जब सो रहा था वहां पर भी मुझे बर्बाद कर दिया। आप बताइए कि कब्रिस्तान पे नवाब, अरे कौन सा औरत का गला है कि भरता ही नहीं है। जिंदों को नहीं छोड़ रहे तो कब्रिस्तान पर बोला कि नवाब के लोग बोले अरे हमारी काबिलियत ये है कि हम जिंदों को नहीं छोड़े तो मुर्दों को कैसा छोड़ेंगे। वाह, मुबारक हो आपके इस जज्बे को। अब खबर पर चले गए तो कौम याद नहीं आई, कौम याद नहीं आई। खबर पे चले गए तो कौम याद नहीं आई। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस ग्राउंड के मालिक का, हमारे मुशाहिद हसन साहब का, जुबैर साहब का, महमूद साहब का। इनको भी बहुत डराया गया ये मैदान मत दो। मैं इनसे कह रहा हूं आपने इस मैदान को बचा के रखा, नवाब की ललचाई नजरों से बड़ा काम किया। अब जब इंशाअल्लाह मजलिस का यह जलसा हो चुका है तो जितने शयातीन हैं, जितनी गंदगी अब यहां से भागेगी, साफ होगा। एक मरतबा दिल में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पूरा जितने इनके अदाए में पूरे के पूरे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नवाब साहब ने एक और बड़ा कारनामा किया कि दुर्ग बरादरी में जो जोजा बरादरी है उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। नवाब साहब तो किसी की तरक्की देख ही नहीं सकते। वो समझते कि मैं अगर खा लिया, मेरा पेट भर गया तो संभल के गरीबों का, भूखों का पेट भर जाता है। नवाब साहब ये समझते कि मैं दौलत खा लिया तो गरीब को उसको जरूरत नहीं है। अरे ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आपने कौन से इंसानियत की मिसाल पेश की। अगर एक गरीब जोजा को सर्टिफिकेट मिलता तो उसकी बेटी, उसका बेटा तालीम में आगे बढ़ता, कलेक्टर बन सकता था, डीएम बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, कमिश्नर एसपी बन सकता था। मगर इनको हसद है कि कोई तरक्की नहीं करे सिवाय मेरे। मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है। मजलिस जब हिस्सेदारी की बात कर रही है तो चंद लोगों की ताकत ना बढ़े बल्कि पूरी आवाम की ताकत बढ़े। मजलिस यही चाहती है कि जब हिस्सेदारी की बात होगी तो राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सियासत में भी, और शिक्षा में भी मिलना चाहिए, अस्पतालों में भी मिलना चाहिए। और मजलिस ये भी बात करती है कि हर जगह पर आपको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी कोई लाके बताए ये नवाब का ये नाला है, नवाब का ये नारा है, खाली प्लाट हमारा। नवाब का ये नारा है, नारा अभी हम नवाब का ये नारा है, कब्रिस्तान मेरा है। क्या बात है बताइए आप। अरे हम भी राजनीति में 4 मरतबा का एमपी हूं, 2 मरतबा का एमएलए बना हुए। अगर हम गलती करते तो हमारे दफ्तर दारुसलाम में हम लोग बैठते, पूरे एमएलए, मैं बैठता हूं, हमारे चौवाली हैदराबाद के कॉर्पोरेटर बारी बारी से आकर अपने बैठते। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो दारुसलाम में जब दाखिल होता तो वहां से पहले पुकार के बोलता अस्सलाम वालेकुम,
اور اندر آنے سے پہلے بولتا آپ ہمارا کام نہیں کیے، آپ کا MLA ایسا نہیں کیا، آپ کا کارپوریٹر ایسا نہیں کیا، اور اندر آتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج سنبل میں پیدا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ عوام کو بولنا چاہیے۔ اگر کل انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے آپ کی دعاؤں اور ووٹوں سے مشیر صاحب یہاں کے نئے ودھائک بنیں گے تو ودھائک نہیں رہیں گے، خادم کے طور پر آپ کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہی مزاج مجلس کا ہے، اور اسی لیے ہماری جان پر حملہ ہوتا ہے، اسی لیے امتیاز جلیل کو ان پر تنقید کی جاتی، مگر یہ مزاج مجلس دے رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 14 تاریخ کے دن متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک بار 5 سال کے لیے آپ مجلس کے حق میں ووٹ دیجیے۔ میں خود ذمہ داری لوں گا، سنبل کو آؤں گا، کم سے کم 2 مہینے میں ایک مرتبہ آ کر بیٹھوں گا دیپا سرائے میں آپ کے پاس۔ میں آؤں گا اور آپ کے درمیان میں بیٹھوں گا، اور پھر ہندو پورا کھیرا کی عوام کو بھی میرا سلام پہنچانا۔ وہاں پر بھی ہم جیسے دیوانے کو بہت چاہنے والے ہیں۔ میں آؤں گا، آپ ایک 5 سال کا موقع مجلس کو دیجیے سنبل میں، ہم آپ کو تبدیلی دکھائیں گے، ہم آپ کو تبدیلی دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ مجلس میں 5 سال میں وہ کام کرے گی جو 30 سال میں نواب نے غارت کر دی، اپنے 30 سال کو مجلس 5 سال میں کام کر کے دکھائے گی۔ اور لوگ بولیں گے کہ کیا تمہارا مکھیہ منتری ہوگا، کیا تم ستا میں آؤ گے؟ ارے ہر چیز کیا ستا میں آنے سے ہوتی ہے کیا؟ یہ بھی تو میرے ودھائک تھے، سنیے، کیا یہ جب ودھائک تھے تو ملائم سنگھ مکھیہ منتری نہیں تھے؟ کیا یہ منتری نہیں تھے؟ کیا یہ ودھائک تھے جب اکھلیش مکھیہ منتری نہیں تھے؟ تو پھر کیا کیے؟ کیا کیے سوچو آپ۔ تو مجلس سیاست یا راجنیتی کی جب کرتی ہے تو تجارت یا دولت کمانے کے لیے نہیں کرتی، خدمت کرنے کے لیے، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میری آواز، میری تقریر کے جملے آپ کے اگر دل تک پہنچ جائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ پروردگار تو دلوں کو پھیرنے والے تو طاقت اللہ کے پاس ہے، اویسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو بے بس ہوں، کمزور ہوں، میں تو صرف اسی کے سہارے زندہ ہوں، اسی کے سہارے توکل کر کے اپنی لڑائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کا ایک اور چہرہ دیکھ لو آپ۔ کل آج تک ٹی وی پر اور ANI کے اوپر، اکھلیش کی بس کے اوپر اس نے ایک سوال کیا صحافی نے، اور پوچھا کہ یہ مسلم نقاب اور حجاب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہا اکھلیش نے؟ کیا کہا اکھلیش نے؟ زور سے بولو، مجھے نہیں سنائی دے رہا، نہیں سنائی دے رہا۔ ارے وہاں روڈ پہ کھڑنے والے بھی کچھ بولو۔ کیا کہا اکھلیش نے؟ کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب حجاب نقاب کا معاملہ آیا تو کان میں آواز کم آنا شروع ہوئی، تو ہمارے کان تو اچھا سن رہے۔ جب اکھلیش سے پوچھا گیا کہ مسلم ووٹ، تو بولے سنائی نہیں دے رہا۔ اور نواب صاحب جب اس کو مسلمان نہیں سنائی دے رہا، حجاب نقاب سنائی نہیں دے رہا، نواب تمہارا تو کوئی عزت کا مقام ہی نہیں ہے وہاں پر۔ ٹی وی کا رپورٹر جب پوچھتا ہے، ایسا لگاتا ہے چاقو کی طرح، جب ہم کو دیکھتا ہے تو وہاں پیچھے ہٹتا ہے، اس کو پوچھیں گے تو کیا بول دے گا؟ کیونکہ ہم الفاظ چاہتے نہیں بولتے، ہم تو سچا سچا بول دیتے ہیں، گھڑا ہے تو گھڑا
तो बंदर बोल देते हैं। यानी आप सोचिए कि वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए भैया तू बन गया। अरे तुम्हारे ख्वाबों में आते? तो किसी जर्नलिस्ट से पूछा ओवैसी तुम्हारे ख्वाब में क्या आते? मैंने कहा मेरे ख्वाब में वो 22 मुसलमानों की तड़पती लाशें आती है, संभल के 2 बच्चों की लाशें आती है, उनके घर की तकलीफ याद आती है बिलाल पाशा की, न नवाब उसके घर को गए न एफआईआर हुआ। ये मेरा ख्वाब है। मेरा ख्वाब में आता है कि संभल से मेरा विधायक होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले से मेरा विधायक होगा और तुम्हारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है। मेरा ख्वाब अपने लिए नहीं है, मेरा ख्वाब अपनी नफ्स के लिए नहीं है। मेरा ख्वाब यही है कि भारत एक मजबूत वतन बन जाए जहां पर गरीब मजलूम मुसलमानों को उनका हक मिले और हम डर कर जिंदगी नहीं गुजारे बल्कि उम्मीद पर जिंदगी गुजारे। आप बताइए, सुनिए, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, मैं आज कह रहा हूं नवाब, सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। मेरी बेटी की शनाख्त हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डर कर उसको वोट देंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से मत डरो, खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो। ये मिजाज मैं आपको दे रहा हूं। अरे दुनिया में जो आया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब मुस्लिम वोट और निकाब और हिजाब पर अखिलेश कह रहे नहीं सुनाई दिया, तो अखिलेश जब तुम्हारी कानों में हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो अब उत्तर प्रदेश और संभल की जनता मजलिस और ओवैसी को अपनी बात सुनाएगी। मैं सुन रहा हूं तुम लोगों को, मेरा दिल सुन रहा है तुम लोगों को, और जब तक दिल धड़कता रहेगा मैं तुम्हारी आवाज बनकर हर मैदान में नाइंसाफी की आवाज बुलंद करूंगा। उस बच्ची ने हिम्मत दिलाई, उस बच्ची ने हिम्मत दिलाई और उस बच्ची ने क्या कहा, बीबीसी के इंटरव्यू में कहा, उस बीबीसी के नुमाइंदे ने उस मुस्कान से पूछा, मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया? तो बच्ची ने कहा, जब मैं डरती हूं तो मैं वो नारा लगाती हूं। बताओ दीपा सराय की जनता, जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? बताओ तुम क्या नारा लगाओगे? जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? अब नवाब से पूछो, नवाब से पूछेंगे, बोलेंगे मैं जब डरता हूं ना भैया भैया भैया। तो ये मिजाज है, करने की जरूरत नहीं है। और मैं इस जलसे से अल्लाह से दुआ कहूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब को अल्लाह सेहत दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो समाजवादी पार्टी में है, मगर हमारे भी बुजुर्ग हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो क्या आप लोग
14 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। वहां रोड पर ठहरने वाले जरा, क्या आप इंशाअल्लाह ताला पतंग पे बटन दबाएंगे? और आसमानों में संभल के दीपा सराय के पूरे संभल में इंशाअल्लाह ताला पतंग नजर आएगी। और 14 तारीख के दिन हर बूथ से आवाज आना चाहिए, पतंग 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 पतंग। तो आपसे यही दुआ को हूं, आपसे यही अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मेरी मां और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ कर रहा हूं, अहले दिल से अपील कर रहा हूं, इस गुनाहगार के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी, मैं पूरे अज़म और हौसले के साथ आपसे कहता हूं कि जितनी जिंदगी बाकी है मैं आपका मखरूज रहूंगा। एक संभल का बहादुर बेटा भी मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, जिसका नाम सालिम है। अल्लाह